Okay, now before we start, we'll just revise certain formulas. In your 10th standard, we learned the formula potential is equal to, what is potential equal to? 10th का formula, potential is equal to work upon charge. Okay, unit of potential is volt. Work का unit is joules. Okay. Now, let's understand what do you mean by potential energy. If you remember in gravitation, we learned about potential energy. Okay, the change in configuration. Okay, what is the definition of potential energy as per our 9th standard, 10th standard syllabus? The energy stored by an object due to its change in position or configuration is called as potential energy. Okay, so in electrostatic also we mean the similar formula. In your target, there is a formula, there is a definition given. Electrostatic potential energy is the work done against the electrostatic force to achieve a certain configuration. To achieve a certain configuration is called as potential energy due in electrostatic. Okay, if you come to page number 188 in textbook, 188 in textbook, वहां पे potential energy का explanation दिया है. First line mark करना pencil से. The potential energy of a system is the stored energy that depends upon the relative position of the constituent. So for any system, whether it is mass, whether it is charge रहे या mass रहे, ठीक है? The potential energy of a system is the stored energy that depends upon the relative position of the constituents. Relative position of the constituents. Okay. Now, electrostatic potential energy, यानी इस chapter में electrostatic potential energy is the work done against the electrostatic force to achieve a certain configuration of charges in a given system. Now, to explain this topic, we already know that like charges repel each other, unlike charges attract each other. We already know about this. So let us take a like charge, positive charge over here. Now I am trying to arrange another positive charge in the vicinity over here. We already know that they repel each other, but I am trying to forcefully put it over here. So I am putting some work on it. I am doing some work on it. That work will be stored in these charges in the form of potential energy. Now read the definition. Electrostatic potential energy is the work done. This is the work done against the electrostatic force. What is the electrostatic force trying to do it? It is trying to repel. But rather than repelling against the electrostatic force, ये इस direction में जाना चाहता है, because दोनों positive charge है. But I am performing some work to bring it from this point to this point. To achieve a certain configuration, this is the configuration achieved वो इस distance पे था and I change its position over here. This change in this position is called as configuration. Okay, in a given system. Okay, please mark that definition. It's an important definition. पूरा topic उसी पे depend है. दो बार repeat हुआ है. ठीक है, बस r के बदले x डाला हुआ है. So it's quite easy to understand. अगर तुमको फर्स्ट पार्ट ऑफ डेरिवेशन समझा तो सेकंड पार्ट ऑफ डेरिवेशन सेम है, सिर्फ तुम्हारा सिंबल्स थोड़ा सा चेंज कर दिया है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन फॉर expression for potential energy. Now this is the first part. Now we learned that what is potential energy. अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना रहे हैं. जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड में mgh था. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था, दैट वाज gmm/r था, माइनस gmm/r. ठीक है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ये इनके फॉर्मूलाज पढ़े थे. नाउ वी आर लर्निंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करना है. ओके, सो आई एम हैविंग वन चार्ज ओवर हियर, दिस इज q. This is positive charge q over here. I'll just write it as per the textbook. I am writing positive capital Q. This is at point O. There is another charge point A, which is at the distance of r1. Okay. Now I am moving another charge, that is I am taking it as small q. I'll take it as a test charge. Test charge. What do you mean by this test charge? इसका value 1 रहेगा, यूनिट चार्ज रहेगा, और या फिर एक स्मॉल चार्ज रहेगा.
दिस इज यूज्ड ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस, यानी मैं पोटेंशियल एनर्जी इसका ढूंढ रहा हूँ, इसका नहीं ढूंढ रहा हूँ. सो दिस इज यूज्ड एज अ टेस्ट चार्ज and I'm moving it from point A to point B, which is at a distance of R2. What are we trying to find? Electrostatic potential energy. Okay. Now, since both are positive charge, there is going to be a repulsive force. So there is an electrostatic force. What is the formula for electrostatic force? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2. कैपिटल Q Q0 अपॉन R स्क्वायर. ओके, समझो यहाँ पे मैंने एक बीच का एक पॉइंट लिया है, उधर का डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर. ओके, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर एनी वेरिएबल पॉइंट. ये R2 और R1 फिक्स डिस्टेंस है, ये R वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, तो R स्क्वायर. नाउ आई एम मूविंग इट टू अ स्मॉल डिस्टेंस dr. यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है. दैट r डिस्टेंस इज अ वेरिएबल डिस्टेंस, जैसे अपन x लेते हैं वैसे यहाँ पे r है. एंड आई एम मूविंग इट टू अ स्मॉल डिस्टेंस dr. सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? The potential energy is given by, what is potential energy means? Energy मतलब work. So potential energy is given by formula. Potential energy यानी work का फॉर्मूला क्या होता है? It is force into displacement. So the force at this point is Fe, electrostatic force. ये E symbol is because it is an electrostatic force into displacement, that is dr. What is dr? A small distance over here. Okay. Now this is in vector form. Okay, मतलब इसके directions count करने पड़ेंगे. So let us consider the directions. अगर मैं directions consider करूं तो vector sign निकल जाएगा, यानी आएगा, look at this, the force is trying to repel it because both are positive charge, but I am trying to move against it. मैं dr distance against move कर रहा हूं, यानी कि क्या साइन आएगा? If it is moving in the same direction of the force, it is positive, but currently I am moving it in the opposite direction of a force, यानी क्या साइन आएगा यहाँ पे? नेगेटिव. चेक करो, अभी वेक्टर साइन चला गया. तो वेक्टर साइन क्या सिग्निफाई करता है? डायरेक्शंस, ठीक है. वेक्टर साइन निकालना है तो तुमको पॉजिटिव नेगेटिव साइन पुट अप करना. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. आई एम मूविंग इट फ्रॉम R1 to R2. So what is the change in potential energy? This change in potential energy is an integration. Where am I moving it? From R1 to R2. See, this is the small potential energy. Small potential energy when I'm moving it to a small distance dr. Okay, but if I'm moving it from R1 to R2, this is in a straight line, I am moving it from R1 to R2, then what is the change in potential energy? That is from R1 to R2 of this distance, this potential energy, du. That is R1 to R2 Fe vector dot dr vector. अब मैं वेक्टर फॉर्म में ही रख रहा हूं, एज पर टेक्स्ट बुक में कर रहा हूं इसके लिए. This is R1 to R2. Now what is Fe vector? Fe vector यानी क्या आएगा? 1 upon 4 pi epsilon 0, अभी अपन ने लिखा था 1 upon 4 pi epsilon 0 Q0 upon R square, ठीक है. अब क्योंकि मेरा वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में इसका डायरेक्शन होना चाहिए. ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसका डायरेक्शन होना चाहिए. और डायरेक्शन है ना, ये जो डिस्टेंस है ना R, ये उसका डायरेक्शन होता है. चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटीज, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं. डायरेक्शन सिर्फ आर का है, ठीक है. दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. यानी यहाँ पे आएगा आर का यूनिट वेक्टर. ये इधर क्यों आया आर का यूनिट वेक्टर? सी, दिस इज अ वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर. अभी अपन ने वेक्टर का टर्म लिखा है, ठीक है. ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके. पर यहाँ पे वेक्टर किसके कारण है? चार्जेस स्केलर है, ये भी स्केलर, तो ये वेक्टर है ना. पर इसको मैं वेक्टर साइन नहीं पुट अप कर सकता. अगर यही आर ऊपर होता ना तो आई वुड हैव पुट इट एज आर वेक्टर.
तो मैं यूनिट वेक्टर नहीं लिखता, मैं आर वेक्टर लिखता। प्रॉब्लम क्या पे आया, ये आर डिनोमिनेटर में, आर डिनोमिनेटर में उसको वेक्टर नहीं डाल सकता, तो मैंने उसका यूनिट वेक्टर को वेक्टर डाला है। तो उसका बेनिफिट क्या हो गया, यूनिट वेक्टर लिखने का बेनिफिट क्या हो गया, ये फोर्स का ही है, ये यूनिट वेक्टर लिखने का बेनिफिट क्या है, इसने सिर्फ डायरेक्शन बताया, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी इसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ ये डायरेक्शन बता रहा है यूनिट वेक्टर। ओके, इनटू डीआर वेक्टर। नाउ नोटिस इट, ये आर वेक्टर एंड दिस डीआर वेक्टर का डायरेक्शन चेक करते हैं। I am moving r vector in this direction, sorry, dr vector in this direction, and r vector is in this direction. As per force, it has to move in this direction. Force का डायरेक्शन ये है, dr इधर है, यानी कि यहाँ पे एक माइनस साइन है, ठीक है। So if I would have put this formula, then too it was right, ठीक है, बट उसके अंदर सिर्फ वेक्टर नहीं आता, ठीक है। Is this clear to you everyone? ये पार्ट समझ में आ गया? Okay. Yes, sir. Now, जो भी टर्म्स पूरे डेरिवेशन में जो टर्म्स चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वो उसको सबको बोलते हैं कांस्टेंट। मैंने चार्ज को इधर से इधर मूव किया, इधर से इधर मूव करने के लिए मैंने एक वेरिएबल पॉइंट लिया r, फिर मैंने उसको मूव किया dr डिस्टेंस पे, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल पॉइंट लिया r, उसको dr पे मूव किया, और फिर उसी एक्सप्रेशन को मैंने r1 से r2 पे इंटीग्रेट कर दिया। मतलब मैं मूव एक्चुअल में कर रहा हूं r1 टू r2 पे, पर डायरेक्ट r1 टू r2 नहीं कर सकते, इसलिए पहले एक वेरिएबल पॉइंट लेके उधर मूव किया, पहले वहां पे मूव किया और फिर बाद में इंटीग्रेट कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन? ओके, नाउ ये सब चीज चला जाएगा, ये वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट्स वगैरह सब चला गया क्योंकि माइनस साइन पुट अप कर दिया है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, पहले ये वेक्टर साइन रहने दो, फिर बाद में माइनस साइन पुट अप करते हैं क्योंकि डायरेक्शन बाद में आएगा। r1 टू r2 1/4 pi epsilon 0 q0 upon r square dr। अब माइनस साइन, अब माइनस साइन क्यों आया? आई कैन राइट अ रीजन ओवर हियर। रीजन, r वेक्टर and dr vector are in opposite direction, okay, या फिर electrostatic force and dr vector are in opposite direction. Is that clear to you? तो ये रिलेशन आ गया, तो वेक्टर्स निकाल दिया इसलिए माइनस साइन आ गया। Now let us do the integration. Tell me, ये पूरे डेरिवेशन में क्या क्या चीजें सेम है, क्या क्या चीजें चेंज हुई नहीं? चार्ज का क्वांटिटी बताओ, यहां से यहां मूव किया, चार्ज का क्वांटिटी Q0 क्या Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया क्या? डिड इट चेंज? चार्ज का क्वांटिटी चेंज हुआ है क्या? नो। तो क्या चेंज, इसके अंदर सिर्फ चेंज क्या हुआ है? डिस्टेंस। बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, सबको चीजों को बाहर निकाल दो। -1/4 pi epsilon 0 q0, ये सब कांस्टेंट है फ्रॉम r1 to r2 of 1/r square dr। Now let us do the integration। अभी जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ये सेम डेरिवेशन वापस है, तो अगर फर्स्ट टाइम में नहीं समझा ना, ये सेकंड टाइम में वापस समझ में आ जाएगा। सेम का सेम है डेरिवेशन, सिर्फ r के बदले x डाला हुआ है, उतना ही फर्क है। ओके, -1/4 pi epsilon 0 q0 1/r square का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? याद करो, r raised to -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? -2 + 1, यानी -1/-2 + 1 -1। इसमें आंसर क्या आएगा? -1/r फ्रॉम r1 to r2। समझा? Yes, sir. Is this clear? Yes, sir. अब ये माइनस साइन हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 1/4 pi epsilon 0 q0, पहले r2 पुटअप करेंगे फिर r1 पुटअप करेंगे, याद है डेफिनेट इंटीग्रल, माइनस इंटू माइनस एस प्लस, वो चला गया, पहले r2 पुटअप करो, यानी क्या आएगा? 1/r2 minus 1/r1। I hope this part is clear. Okay, so this is the change in potential energy. Now understand this concept, huh? So this derivation is for change in potential energy. Okay, so I'll just do this derivation once again. Where I'm moving this point,
This is a test charge Q0 at point A at a distance of R1. Okay, now I'm moving it to another point B, which is at a distance of R2. But I cannot directly move from R1 to R2. So I am taking a variable point P, which is at a distance of R. Now this R signifies a variable point. Now that variable point, I am going to move it to what distance? dr. कौन से डायरेक्शन में मूव करें? अपोजिट, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, सो दे आर रिपेलिंग. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? दे आर ट्राइंग टू रिपेल. द ऑलवेज, याद रखना, ऑलवेज द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम ऑफ चार्ज, this system of charge is always going to try and reduce its potential energy. ये अपना पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम करने का कोशिश करता है. यानी ये रिपेल क्यों हो रहा है? ये रिपेल क्यों हो रहा है? सो दैट उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो. फॉर एग्जांपल, मैंने अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर हाइट पे आया तो देयर इज एन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. ये नीचे क्यों करा? बिकॉज इसको उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो करने का है. तो सेम वे इसको रिपेल होने का है. But I am going to forcefully move it from this point to this point, that is dr. So I am going to apply a I am going to perform a small work, that is du. That du is called as the potential energy, which is the work performed by us on it. Okay. What is the electrostatic force which is trying to repel it at this point? At this point, इधर के point पे का क्या आएगा? 1/4 pi epsilon 0 Q0. ये चार्ज अपॉन R square. What is the potential energy formula? इस पॉइंट पे, क्योंकि अपन इधर का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ रहे हैं. So tell me, what is the potential energy formula? FEDR. Yes. FE vector dot dr vector. FE vector जो इधर जा रहा है, dr vector इधर आ रहा है. अगर मैंने वेक्टर्स निकाल दिया, यानी नेगेटिव साइन, नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, अगर मुझे टोटल पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए फ्रॉम R1 to R2, then all these small potential energy has to be integrated. This is a small potential energy. This potential energy has to be integrated from here to here to here to here to here to here. इन सबका समेशन करना है. समेशन का मतलब इंटीग्रेशन करना है. Now let us put up over there R1 to R2. du का वैल्यू पुट अप करो, क्या आएगा? FE वेक्टर डॉट dr वेक्टर. मैंने ये पुट अप किया है, ये वाला नहीं पुट अप किया क्योंकि नेगेटिव साइन मैंने बाद में लिया है. ओके. नाउ लेट अस पुट अप द वैल्यूज. क्या आएगा? R1 to R2. FE वेक्टर, व्हाट इज FE वेक्टर? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. But because it's a vector, because this is a vector, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या पुट अप कर दिया है? मैंने क्या पुट अप कर दिया है? यूनिट वेक्टर. ये कैप डाला है, मतलब यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का जॉब क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए हेल्प कर रहा है, इनटू dr वेक्टर. ओके. अगर मैंने ये वेक्टर्स निकाल दिए तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? R1 to R2 1/4 pi epsilon 0 Q0 upon R square, और एक नेगेटिव साइन आएगा इनटू dr. ये नेगेटिव साइन किस लिए आया? Because R vector and dr vector are in opposite direction. Because force R इस साइड में मूव करने की कोशिश कर रहा है, dr हम लोग अपोजिट में मूव कर रहे हैं. ओके. नाउ वी हैव टू डू इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन किसका करते हैं? जो भी कांस्टेंट टर्म है वो पहले बाहर आ जाएगा. जो चेंज हो रहा है पूरी डेरिवेशन में सिर्फ उसी का आएगा. तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रहा है. ठीक है. रेस्ट ऑल इज सेम, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है. सो हियर 1/4 pi epsilon 0 Q0 कांस्टेंट है, वो सब बाहर आ गया. इंटीग्रेशन के अंदर आएगा R1 to R2, माइनस साइन भी बाहर लेके जाएंगे. 1/r square dr. Now let's integrate it. Minus 1/4 pi epsilon 0 Q0. 1/r square का इंटीग्रेशन will become minus 1/r R1 to R2.
माइनस इंटू माइनस इज प्लस, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, पहले R2 पुटअप होगा फिर R1 पुटअप होगा, यानी 1/R2 minus 1/R1. Now please do remember, this is a change in potential energy when I'm moving it from this point to this point. This is a change in potential energy. Okay, so when I'm changing its configuration, from this point to this point, the difference in potential energy created over here, because I'm forcefully changing it, that energy I have found out, change in potential energy. But if I want to find the potential energy of a system where I'm not changing its configuration, मतलब मैं यहाँ पे मूव कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे को एक सिस्टम है, मेरे दो चार्जेस इस पॉइंट पे, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ. इफ आई होल्ड एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है. जब मैं छोड़ रहा हूं ना, देन देयर इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. मैंने कहा मैं छोड़ ही नहीं रहा हूं, मैंने होल्ड करके रखा है, तो इसका पोटेंशियल, ये एक सिस्टम हो गया, अर्थ ऑब्जेक्ट, उसमें पोटेंशियल एनर्जी का एक सिस्टम है जहां पे चेंज नहीं हो रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम पूछा हुआ है, ठीक है. सो नाउ व्हाट हैज टू बी डन टू अंडरस्टैंड दिस. इफ आई कंसीडर एट इंफिनिटी, ठीक है, if I am moving an object from infinity, why am I moving an object from infinity? Potential energy keeps on reducing as the object keeps on going away. ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है. कहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा? एट इंफिनिटी पे. एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. Why potential energy is zero? Because 1/r का वैल्यू becomes 1/infinity. 1/infinity यानी क्या होता है? जीरो. ठीक है. सॉरी, एक बार याद दिलाया करो, स्क्रीन के ऊपर नहीं है. So what happens? I am taking the point at infinity. If I take it at infinity, potential energy is zero. Why it is zero? Because 1/r यानी 1/infinity is zero. Now I am moving it from infinity to a distance r. तो सेम फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ढूंढ रहा हूं. फ्रॉम वेयर टू वेयर? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, ये वाला. कहां से कहां पे मूव कर रहे हैं? इनिशियली कहां पे था? इंफिनिटी पे. इनिशियली इंफिनिटी पे था, यहां पे इनिशियली इंफिनिटी पे था, ठीक है. और मैं इंफिनिटी से कहां पे मूव कर रहा हूं? आर पे मूव कर रहा हूं. इंफिनिटी टू आर. व्हाट इज 1/infinity? Zero. जीरो तो जीरो हो गया. सो मेरे को जो एनर्जी मिलेगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 1/r. ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बनेगा which is of 2 points at a distance of r. This will be the potential energy of a system of 2 charges at a distance of r. Okay, so here what we have learned is, हमने change in potential energy ढूंढा, यहाँ पे अपन ने change in potential energy ढूंढा, बाद में अपन ने potential ढूंढा, potential energy ढूंढा of a system. Is that clear to you everyone? The unit of potential energy is joule. Other unit of potential energy is electron volt, because charges carry electrons. ठीक है, so electron volt में भी energy है. Relation is one electron volt is 1.6 into 10⁻⁻19 joule. वो conversion याद रखना बहुत easy है. E यानी charge on an electron. What is the charge on an electron? 1.6 into 10⁻⁻19. ठीक है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और ये वोल्ट, कूलम इनटू वोल्ट यानी जूल बन जाएगा. सो दिस इज अ कन्वर्जन. ये मेन कन्वर्जन याद रखो. कैसे याद रखना है पता है? सिर्फ E का वैल्यू पुट अप करना है तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा.
ई का वैल्यू पुटअप कर दिया तो जूल में कन्वर्ट होगा, अगर ई का वैल्यू डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 10⁻³ और करना है, किलो वोल्ट इज 10⁻³ करना है। ओके ना, ये जो मिला है ना इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस आर। दिस इज अ सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिस्टेंस आर। अब मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। मींस इंस्टेड ऑफ 2 चार्जेस अज्यूम कि वहां पे एक ही चार्ज होता है। अज्यूम करो मैं एक ही चार्ज है और मैं इसी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढ रहा हूं। तो मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी नहीं ढूंढ रहा हूं। 2 चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी होता है, अब मैं सिर्फ एक चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम गोइंग टू टेक दीज चार्जेस। ये सिंबल का मतलब होता है एट ए डिस्टेंस आर, ओके। 1/4πε0 मैं यहाँ पे लिख रहा हूं Q1 Q2 अपॉन R। Q0 के बदले Q1 Q2 अपॉन R। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स है A एंड B एट ए डिस्टेंस ऑफ R। इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2। यहाँ तक क्लियर? ओके तो सेम फॉर्मूला को आगे मैंने कंटिन्यू किया, इसलिए मैं इसको ही डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये अलग अलग आंसर है, ये एक अलग आंसर है, यहां से यहां तक अलग आंसर है, ये अलग आंसर है। तो दिस इज फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, दिस इज थर्ड आंसर, ओके, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, प्लीज डू रिमेंबर इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इट इज नॉट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो इधर हो गया है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इधर था जब मैं R1 टू R2 मूव कर रहा था। यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मैंने इंफिनिटी टू R क्यों किया, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। तो वो डिफरेंस ऑफ, मैंने डिफरेंस ऑफ एनर्जी को ही यूज करके सिस्टम ऑफ एनर्जी ढूंढा है, ठीक है। नाउ हियर यू आर फाइंड आउट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिस्टेंस r। what I will do is I will write it as 1/4πε0 Q1 upon R into Q2, Q1 upon R into Q2, and the same formula I am writing it as 1/4πε0 Q2 upon R into Q1, okay। तो मैंने एक ही फॉर्मूला को 2 अलग अलग पार्ट में लिखा हुआ है। So I have written this as Q1 upon R, Q2 को बाहर निकाला है, Q2 upon R, Q1 को बाहर निकाला है। So this means electric potential, इस चीज का मीनिंग हो गया, this is electric potential at a distance R of object 1, of charge 1 into Q2। इसका मीनिंग क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस R ऑफ चार्ज Q2, क्योंकि अंदर Q2 है, बाहर Q1 है, ओके। सो मैंने सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया, तो इस ये जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो VR1 is electric potential of charge Q1 and वैसे ही VR2 क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q2। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों है, डू यू रिमेंबर एट द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर आई written a formula, 10th का फॉर्मूला लिखा था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क अपॉन चार्ज, याद है ना। और वर्क का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। तो नोटिस करो ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये चार्ज है, ये चार्ज नीचे आएगा, ये चार्ज नीचे आएगा। अगर ये चार्ज नीचे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आर यू क्लियर विद दिस? समझ में आ गया ये पार्ट? यस सर। इस बुक के सिंबल के हिसाब से लिख रहा हूँ, थोड़ा गड़बड़ किया मेरे सिंबल में। दिस इज रिटन एज V1 R, टेक्स्ट बुक का ही सिंबल यूज कर रहा हूँ,
This is electric potential of second charge at a distance r. Please, I am using the textbook symbols. ये ब्रैकेट में r लिखा मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वो एट ए डिस्टेंस सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। सो एक्चुअल में डेरिवेशन ये है, ये डेरिवेशन था, इसी को मैंने एक्सटेंड करके सिस्टम ऑफ चार्जेस निकाला। सिस्टम ऑफ चार्जेस में को ही रीअरेंज किया है मैंने, सिर्फ ये फॉर्मूला को रीअरेंज किया। Q1 अंदर रखा तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले चार्ज का हो गया, Q2 अंदर रखा तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेकंड चार्ज। सो दीज आर जस्ट स्मॉल आंसर्स व्हिच आर जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दिस आंसर। और ये जो डेरिवेशन है ना, ये डेरिवेशन वापस तुमको आने वाला है आगे, ठीक है। बिफोर वी मूव ऑन, पहले में पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला इज वर्क अपॉन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग को वो उसका और पोटेंशियल का, इसका और इसका रिलेशन करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला साइड में इसलिए रखा है बिकॉज व्हेन आई एम यूजिंग इट तभी तुमको क्लैरिफिकेशन आएगा, ओके। आई एम डूइंग इट एज पर टेक्स्ट बुक। ये ओल्ड पोर्शन में ये थोड़ा अलग था, अभी थोड़ा सा चेंजेस है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस itself I am doing it. First, if I am moving a charge through a small distance dx, okay, against the direction of force, मतलब जो last time system किया था वैसा ही समझना है। If I am moving the charge against the force, electrostatic force, through a small distance dx, then what is the work done? What is work formula? Force into displacement. क्योंकि मैं against जा रहा हूं तो माइनस साइन आएगा। Now the charge which I am moving is a unit positive charge. Unit positive charge. Now this line is very important, जो टेक्स्ट बुक में ठीक से मेंशन नहीं किया हुआ है, तो स्टूडेंट्स हैव लॉट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि मेरे को रीड करते वक्त भी समझने में डिफिकल्टी आया था कि किधर गया चार्ज। मतलब चार्ज का वैल्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग होता है Q का वैल्यू 1 है। अब यही फॉर्मूला यूज करो, Q का वैल्यू 1 है, so what does this work done becomes? माइनस F के बदले क्या आएगा, अगर ये 1 है, F के बदले क्या आएगा, E into dx। मैं यहाँ पे रीजन लिख रहा हूँ जो टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है। What is E equal to F upon Q, which is F upon 1, यानी E और F इक्वल हो। Are you clear with this? Any questions here? Yes. No, sir. Okay. Next, work done. What is work done? V into Q. Clear? What is work done? इसलिए मैंने ये पहले लिख दिया। What is work done? V into Q. Okay, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। What is dW equal to dV into Q? बट Q का वैल्यू क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहा हूँ, यानी यूनिट वर्ड का मतलब 1, तो Q का वैल्यू 1 है, यानी ये क्या आ जाएगा dV। तो मैं dW के बदले क्या डाल रहा हूँ, dV। So what is dV equal to minus E into dx? That's your derivation. ये इतना ही derivation है। What is this derivation for? Relationship between electric field and electric potential. पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट आता है, इसका यूनिट मीटर्स आता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट्स आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था F अपॉन Q, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला यूनिट क्या था, न्यूटन पर कूलम। हाँ, दूसरा यूनिट बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा, वोल्ट, ये नीचे आएगा वोल्ट पर मीटर। So there are 2 units, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। इनफैक्ट मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने ये फॉर्मूला पहले ही बता दिया था और यूनिट्स भी पहले ही बता दिया था। ये डेरिवेशन क्लियर हुआ? ये डेरिवेशन का कंफ्यूजन क्या था पता है, कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, Q वैल्यू 1 है, तो इसलिए ये दोनों फॉर्मूला का Q वैल्यू 1 यूज करके मेरे को इधर पुट अप करना है। क्योंकि Q 1 है तो F के बदले डायरेक्टली E आ गया, DW के बदले डायरेक्ट DV आ गया, क्योंकि दोनों केसेस में Q 1 है। Are you clear with this formula? Yes. Zero potential. Now zero potential अभी अपन ने किया था। Can you tell me zero potential कहाँ पे था?
Infinity. 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 The nature of potential is such that its zero point is arbitrary. It's something which we assume. This does not mean that the choice of 0 point is insignificant. Once the 0 point of the potential is set, that every potential is measured with respect to that reference. The 0 potential is set conveniently. अपन अपने convenience के हिसाब से use करते हैं. In case of a point charge or localized collection of charges, the 0 potential is set at infinity. तो ये हमने अपने convenience के हिसाब से लिया है. तो तुम्हारा वो second paragraph important है. For electrical circuits, now this is not important for you. For electrical circuits, the earth is used as a zero potential. If you know why lightning strikes earth, lightning earth को क्यों strike कर रहा है? Because the clouds are at higher potential, earth is at zero potential. हमने earth को क्या assume किया है? Zero potential. That's the reason lightning strikes the earth. वैसा वाला assumption है. For electrical circuits, the earth, now हम लोग earthing भी use करते हैं ना? अर्थिंग भी यूज कर 3-पिन प्लग में एक अर्थिंग होता है, वो कहां पे जाता है? अर्थ के अंदर. व्हाई? बिकॉज़ इट्स अ जीरो पोटेंशियल. Thus potential at point A in an electric field is the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to point A. इससे what is the potential energy? It is moving from point infinity to point A, जो अपन ने पिछले डेरिवेशन में ऑलरेडी यूज कर दिया. ठीक है. If I am finding the electric potential of a point charge, this is point O. I am moving it from one point to another. I want to find the electric potential of this point charge at point A. इसका potential at A find out कर. पागल है क्या रे? Please mute. 9:45. Please mute. Okay. So I am finding the electric potential of this charge Q, positive charge Q, at point A. Now this A point is at a distance r. Now to find this, हमने जो last time derivation किया ना, ये same derivation है. कितना हीट दे रहा हूँ. अब मैं एक टेस्ट चार्ज ले रहा हूँ. टेस्ट चार्ज, which I am taking it as unit positive charge. वापस मैंने word क्या use किया, ध्यान देना. Unit positive charge. Because this is again a unit positive charge, यानी टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना हो गया? 1. Is this clear? अब मैं ये टेस्ट चार्ज, मेरे को है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ इसका ढूंढना है इस पॉइंट पे. मतलब ये सिर्फ मैंने डेरिवेशन के लिए कंसीडर किया है, पर इसका इफेक्ट इस पॉइंट पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट फाइंड आउट करना है. सो आई एम यूजिंग अ टेस्ट चार्ज एंड आई एम मूविंग इट टू अ स्मॉल डिस्टेंस dx. याद करो जो लास्ट टाइम अपन ने किया था वो क्या था? स्मॉल डिस्टेंस dr पे मूव किया था. इस बार किधर मूव करे? स्मॉल डिस्टेंस dx पे मूव करे. ओके, सो आई विल स्टार्ट. दिस डिस्टेंस dx इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x. जो लास्ट टाइम किया वही डेरिवेशन है. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फार्मूला फॉर फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट दिस डिस्टेंस x. यहाँ पे x वेरिएबल है. लास्ट टाइम r वेरिएबल था, इस बार x वेरिएबल, सिर्फ टर्म चेंज हो गया, बाकी पूरा डेरिवेशन सेम. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्मूला? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square के बदले x square. ठीक है. मैंने यहाँ पे एक ही क्यों लिखा है? Q1 Q2 है, एक ही क्यों लिखा है ये वाला, दूसरा क्यों नहीं लिखा? One है उसका भाई. Because वो unit positive है. I hope this part is clear, that confusion is clear to you. Yes sir. Now, Yes. what is work then? Last time potential energy लिखा था. लास्ट टाइम मैंने यही चीज पोटेंशियल एनर्जी लिखा था, इस बार मैं वर्क लिख रहा हूँ. पोटेंशियल एनर्जी और वर्क आर सेम थिंग. सो व्हाट इज वर्क? इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इस बार लास्ट टाइम dr का डिस्प्लेसमेंट था, इस बार dx का डिस्प्लेसमेंट है. सिंस द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस साइन आ गया. ठीक है, ये माइनस साइन क्यों आया, समझा ना? ओके. सो व्हाट इज द टोटल वर्क डन? Total work done. See, we need to find the potential at point A. अगर मैंने इधर से इधर मूव किया, B to A मूव किया, तो मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा या मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? Potential difference. हाँ, तो मैं B to A मूव करना चाहिए या मैं किधर से किधर मूव करना चाहिए? Infinity to A. Very nice. Infinity to R.
I hope now it is clear to you. If I move it from within the field to within the field, field के अंदर से field के अंदर move करूंगा ना, then I am going to get potential difference. Potential energy का difference, potential का difference मिलेगा. But if I move it from infinity to this point, infinity पे potential is 0, यानी A का potential सिवाय. ठीक है? So where I am moving it, that part is clear. Put up this value. Infinity to r minus f dx. जो लास्ट टाइम किया वही है पूरा डेरिवेशन. माइनस साइन बाहर, f का फॉर्मूला, यहाँ तक क्लियर? नाउ जो कांस्टेंट से बाहर निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, माइनस साइन बाहर आ गया, 1/x² का इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r. चलो जल्दी बताओ. -1/x². अभी तो लर्न हो गया रहेगा, अभी इजी लगेगा ये डेरिवेशन. -1/x. 1/x² का इंटीग्रेशन इज -1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू r. नाउ दिस डेरिवेशन इज क्वाइट इजी फॉर यू. ये तीसरी बार कर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. पहले r पुट अप होगा फिर इंफिनिटी पुट अप होगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q 1/r minus 1/infinity. Please don't consider this minus. Minus और minus plus हो गया. पहले r फिर infinity. Now what is 1/infinity? 0. So the work done is 1/4 pi epsilon 0 q upon r. Reason 1/infinity is 0. Okay. So now this is, now notice this. This is work done. पर मेरे को तो चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तुमको याद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? वर्क अपॉन चार्ज. याद है ना? Yes sir. तुम्हारे 10th का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज. पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज. बट यहाँ पे अपन ने टेस्ट चार्ज जो है वो 1 लिया हुआ है. सिंस यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. टेक्स्ट बुक में ये सब एक्सप्लेन नहीं किया है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क सेम हो गया, यानी क्या फॉर्मूला आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r. अभी अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फाइंड आउट किया है एट अ डिस्टेंस r. यही पार्ट अपन ने इससे पहले भी किया हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, बट अपन ने वो सिस्टम ऑफ चार्जेस यूज किया था, सेम फॉर्मूला आया था. तुमको याद है वो सिस्टम ऑफ चार्जेस यूज किया था? तुमको याद दिला रहा हूं. u ऑफ r, व्हाट वाज दैट? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 अंदर रखा था, q2 बाहर रखा था, q2 अंदर रखा था, q1 बाहर रखा था. और फिर अपन ने क्या लिखा था? दिस इज v1 एट अ डिस्टेंस r, q2 v2 एट अ डिस्टेंस r. क्योंकि अंदर q2 चार्ज है, अंदर q1 चार्ज है तो v1 है, अंदर q2 चार्ज है तो v2 है, इनटू q1. तो तुम नोटिस करो ये v1 का फॉर्मूला क्या हो गया? ये v1 का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r. q अपॉन r सेम फॉर्मूला है. सेम फॉर्मूला, मैंने सेम फॉर्मूला डिराइव किया है, बट ये डिराइव करने का तरीका अलग है. ठीक है, यहाँ पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज को, वहां पे अपन ने सिस्टम ऑफ चार्जेस यूज करके डिराइव किया. क्लियर विद दिस? समझ में आ गया ये पार्ट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, सॉरी r स्क्वायर है. ठीक है. Now, okay, इसका नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक बाकी है, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा. एक लास्ट टॉपिक खत्म करेंगे. नॉट नाउ, नेक्स्ट लेक्चर.